اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور ہمیں اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں. آپ اس چینل پر ہمیں سوال دے سکتے ہیں اور آپ کو ہم ضرور جواب دیں گے. خدا آپ کو برکت دے. اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگتا ہے تو ضرور اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. آج ہم صرف زبور کی کتاب کا تعارف دیکھیں گے، اس کو انٹروڈکشن، صرف اس سے ہم شناسائی حاصل کریں گے. اور یہ انٹروڈکشن بہت چھوٹا ہے، وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے بہت چھوٹا سا انٹروڈکشن دیا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت وقت لیا جا سکتا ہے. زبور کی کتاب بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور اس کتاب کو ہم زبور کہتے ہیں. مزامیر درست اس کا ترجمہ ہے، تحلیم. زبور کی کتاب میں جو 119واں زبور ہے وہ سب سے طویل زبور ہے. 150 کل ابواب ہیں اس کے، اور 119ویں زبور کے 176 آیات ہیں. یہ بہت خوبصورت کتاب ہے. یاد رکھیں کہ یہ کتاب ہماری زندگی میں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں. اگر ہم میں سے کسی بھی شخص کو کسی ایک جزیرے پر اکیلا چھوڑ دیا جائے اور وہاں پر بائبل کی صرف ایک کتاب لے جانے کی اجازت ہو، تو آپ کس کتاب کا انتخاب کریں گے؟ اگر مجھے یہ آپشن ملے تو میں زبور کی کتاب کا انتخاب کروں گا. اس کتاب کے مضمون بہت وسیع ہیں، اس میں زندگی کے تجربات اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں پرستش کا انداز اس قدر اعلیٰ ہے کہ مجھے بڑی دیر تک دعا اور شکر گزاری کے لیے عمدہ خوراک میسر آتی رہے گی. زبوروں میں زیادہ تر غنائیہ زبور ہیں، یعنی اس کتاب کی جو شاعری ہے اس کا ربط اور ہم آہنگی بربط سے ہے کہ اسے سازوں کے ساتھ استعمال کیا جائے، نہ کہ اس کو پڑھا جائے. یہ گانے کے لیے ہے، یہ پڑھنے کے لیے نہیں. زبوروں کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو مقدس داؤد نے لکھا، یا یہ زبور کی کتاب جو ہے مقدس داؤد کے نام سے منسوب بھی کی جاتی ہے، لیکن اس میں صرف نصف یعنی 73 زبور جو ہے وہ مقدس داؤد کے ہیں. 12 زبور جو ہے وہ آصف، 10 زبور بنی کورا سے منسوب ہے، 2 زبور جو ہیں سلیمان کے، 1 زبور موسیٰ کا، 1 زبور ایتان ازراخی کا، 1 زبور ایمان ازراخی کا، 1 زبور عزرا سے منسوب. اور ہم 49 زبوروں کے مصنفین کے بارے میں نہیں جانتے کہ 49 زبوروں کو کس نے لکھا. زبور کی کتاب مقدس موسیٰ سے لے کر عزرا تک، یعنی 1400 کاف میم سے لے کر 400 کاف میم تک تقریباً 1000 سال کے عرصہ کے دوران لکھی گئی. تاہم زیادہ تر جو زبور ہیں وہ مقدس داؤد سے لے کر حزقیہ کے زمانے تک کے تقریباً 1000 کاف میم سے 700 کاف میم تک، یعنی 300 سالوں کے دوران لکھے گئے. تقریباً 24 مقامات ایسے ہیں جن میں خداوند یسوع مسیح کے متعلق تصویر کشی کی گئی ہے، اور جس کی تکمیل خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں بھی ہوئی. مزامیر کی کتاب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں پہلا حصہ جو ہے وہ
पहले ज़बूर से लेकर 41वें ज़बूर तक, दूसरा हिस्सा 42वें ज़बूर से लेकर 72वें ज़बूर तक, तीसरा हिस्सा 73 ज़बूर से लेकर 99 ज़बूर यानी 89, और चौथा हिस्सा 90 ज़बूर से लेकर 106 ज़बूर तक, पांचवा हिस्सा 107वें ज़बूर से लेकर 150वें ज़बूर तक हैं। ज़बूर 119 सबसे तवील ज़बूर है। इसे 22 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर हिस्से में 8 आयात हैं। हर हिस्सा इब्रानी के एक लफ्ज से शुरू होता है। हर हिस्से की हर एक आयत एक ही लफ्ज से शुरू होती है। मिसाल के तौर पर हमने 119वें ज़बूर की पहली 8 आयत को पढ़ा है, तो पहली 8 आयत जो हैं, आठों आयत का जो पहला लफ्ज है वो अलिफ है। इसी तरह 9वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक हर आयत का जो पहला लफ्ज है वो बेत है, और इसी तरह ज़बूर के आखिर तक। हर एक आयत में, यानी 176 आयत है इसकी, तो हर आयत में खुदा के कलाम का तज़किरा है। जैसे हमने 8 आयत पढ़ी है, पहली आयत में लिखा है खुदावंद की शरीयत पर जो अमल करते हैं। यहां पर लफ्ज शरीयत खुदा के कलाम को रिप्रेजेंट करती है भी। दूसरी आयत में उसकी शहादतों को जो मानते हैं। तीसरी आयत में जो उसकी राहों पर चलते हैं। चौथी आयत में कवानीन, उन्हें अपने कवानीन दिए हैं। और 5वीं आयत में तेरे आइन मानने के लिए मेरी रविशें दुरुस्त हो जाएंगी। हर एक आयत में खुदा के कलाम का जिक्र है। तो एक आलिम है, एक बहुत बड़े पादरी साहब हैं, उन्होंने कहा कि 176 आयत हैं, तो खुदा 176 बार ये कहता है कि मेरे कलाम को पढ़ो और उस पर अमल करो। 176 बार वो हमें ये तजवीज़ देता है। याद रखें कि बनी इसराइल का हर मर्द ज़बूर 119 ज़ुबानी याद करता था। यीशु मसीह ने भी ये ज़बूर ज़ुबानी याद की है। और इसकी जो 5 किताबें हैं, ये 5 किताबें जो हैं शरीयत की 5 किताबों को रिप्रेजेंट करती हैं। और याद रखें इसमें 4 आयत ऐसी हैं जिसमें खुदा के कलाम के साथ मोहब्बत का बहुत इजहार किया गया। इन आयत को खुदावंद यीशु मसीह ने महसूस भी किया। 84 आयत, 121 आयत, 122 आयत और 132वीं आयत। ये ज़बूर हकीकी इसराइल की ज़ुबान भी होगा। यानी हमें आज भी इस बात की ज़रूरत है कि हम इस ज़बूर को सीखें, इसको हम हिफ्ज़ करें, याद करें, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि हमें ये पता चले कि खुदा के कलाम की कितनी अहमियत है, और हमें याद हो कि खुदा का कलाम कितना हमारे लिए ज़रूरी है। हकीकी इसराइल की ज़ुबान ये होगा मुस्तकबिल में, जब पूरे तौर पर खुदा की बादशाही होगी, जब लोग खुदा की तरफ रजू लाएंगे और वो लोग जिन्होंने अरसा दराज से खुदा को नज़रअंदाज कर रखा है, वो जब खुदा की तरफ रजू लाएंगे तो फिर उनको पता चलेगा। रजू लाने के लिए अभी वक्त है, हमारे पास टाइम है। हम आजकल जिस सीज़न से गुजर रहे हैं, ये कौन सा सीज़न है? लैंड सीज़न है। और इस सीज़न में हमें खुदा के कलाम की अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए कि जब तक हम खुदा से बातचीत नहीं करेंगे, हमारा रोज़ा भी बेफायदा है। खुदा के कवानीन जो है वो अख्तियारी नहीं है।
बल्कि दिल लगाकर अमल करने के लिए। खुदा के अहकामात जो हैं वो रिवायती नहीं है, रिवायत नहीं है, बल्कि दिल लगाकर अमल करने के लिए है। साबित कदमी खुदा की तरफ लेकर जाती है। जब हम रोजाना इस बात का इजहार करेंगे, दिल लगाकर खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, खुदा के कलाम को सीखेंगे, हमारी आदत बनेगी। हम साबित कदमी से इस पर कायम रहेंगे। सारे काम छोड़कर हम सिर्फ खुदा के कलाम को अहमियत देंगे। हम अपने टाइम में से टाइम निकाल कर, हमें पता होगा कि फलां टाइम मैंने खुदा के कलाम को पढ़ना है, तो हम हर एक काम को छोड़कर सिर्फ खुदा के कलाम की तरफ रजू करेंगे। क्योंकि जब हम खुदा के साथ रफाकत में होते हैं तो हम नदामत से बच जाते हैं। हमारी जिंदगी में खुशी पैदा होती है और शुक्रगुजारी का अमल हमारे दिल से निकलता है। हम दुरुस्त फैसले तक पहुंचते हैं, वो फैसला जो खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के रूह के मुताबिक होता है। हम कमजोर फैसले जब करते हैं तो हम गिरते हैं, हमें नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जब हम दुरुस्त और सही फैसले करेंगे, खुदा की मर्जी के मुताबिक होंगे, तो हमें फिर नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। हमें अपनी कमजोरियों का एहसास होता है। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें हमारी कमजोरियों का एहसास होता है। मैं एक कलीसिया में कलाम सुना रहा था, तो एक बुजुर्ग खड़े होकर कहने लगे, जी पादरी जदों कलाम सुनाउंदा है ये मेरे ते कलाम सुनाउंदा, मैं जदों गिरजे आउना मेरे ते कलाम लगता। हमें खुदा का कलाम हमारी कमजोरियों को ही दिखाता है, ताकि हम उन कमजोरियों पर गालिब आएं और उनको छोड़ें, अपनी जिंदगी में से निकाल बाहर करें, और निकाल बाहर करके हमारा ताल्लुक खुदा के साथ मजबूत हो। आज मेरे लिए और आपके लिए ये चैलेंज है। ज़बूर की किताब का ये तारफ मुझे और आपको ये सिखाता है कि किस तौर से बनी इसराइल ने खुदा के कलाम को अहमियत दी है, और आज भी वो देते हैं अहमियत। हमें भी, जो हम रूहानी तौर पर बनी इसराइल हैं, खुदा के कलाम को अहमियत देनी चाहिए। खुदा के कलाम के वसीले से हम सबों को बरकत। खुदा बाप, बेटे, रूह पाक के नाम से।